Hello students, welcome to class 11th biology. First of all, congrats to all of you for a successful result in class 10. Many more you got very good percent, 80, 90, 95, 96, 97. And after that, you are in class 11th. And I am teaching you biology. Lesson 1. Although it is taught earlier, but many more students joined recently. So that's why I am starting from the starting now. And I am explaining to you the first chapter is living things and their characteristics. Although CBSE board has reduced the syllabus 30% due to the COVID-19, I hope that everybody is healthy, safe, and in future also you must be very, very sensitive for your health, for your family health. Be careful and continue your study properly, because due to the COVID-19 the school are not opening. In future also you are not hopeful for so. So that's why at home you have to carry on the study, online classes. You must have books, copy, write down the classwork in proper way, in good handwriting. Whenever the school will reopen, then you have to come to school, we have to check your notes, and we again carry on your study for the next lesson. So till now, till that, I am just telling to you biology. What is biology? The term biology, you know very well. You are familiar about the biology from class 6, 7, 8. In this class, class 11th, you must be know, because biology is separate subject. It was earlier science, but now it is biology subject. The word biology derived from two Greek words. Bio means life, and logos means study. The branch of science in which we study about living being known as biology. So biology is the branch of science, living. Now, category of biology. Biology categorized into many more categories according to the study. First of all, the term botany, zoology. Now you have biology in class 12. When you go to for the next class, graduation, PG level, there should be separate, botany separate, zoology separate, microbiology, and many more branches. First of all, botany, zoology, botany, microbiology. So I want to tell you what is zoology. The term zoology again derived from two Greek words. Zoon means animals. Zoon means animals, and logos means study. So branch of science, branch of biology, in which we study about animals, known as zoology. जिनमें हम एनिमल बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो माइक्रो एनिमल्स हों, जू प्लैंक्टन्स हों, या ह्यूज व्हेल एलिफेंट हों, सबको एक हम स्टडी करते हैं, जूलॉजी में करते हैं. नाउ सेकंड वर्ड इज बॉटनी. द वर्ड बॉटनी ड्राइव फ्रॉम बॉटनी विच मीन्स हर्ब्स. हर्ब्स सब ट्री आपने पढ़ा होगा, हर्ब्स तो मुलायम घास फूस होते हैं, है ना. सो ऑन द नेम ऑफ हर्ब्स दिस बॉटनी ड्राइव्ड. और बॉटनी में हम सारे प्लांट को, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स. So botany is the branch of biology which deals with the study of plants. Microbiology. Microbiology, नाम इसका दिया हुआ. Micro means minute, which can't be observed with the naked eyes. So microbiology is the branch of biology which deal with the study of living beings which are microscopic, which cannot see with the naked eyes. जिसमें हम वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, एल्गी, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनको देख नहीं पाते हैं, उनको इसमें हम पढ़ते हैं. आप नाउ दैट टर्म arise that what are living things? Do you know about living things? You have many more non-living things around you, your surrounding. You have table, chair, fan, utensils in your home, है ना. This my articles, this board, everything what? Non-living. And cow, buffalo, birds, and many more insects, many more birds, many more animals, human beings, they are living beings. तो लिविंग बीइंग क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म
which have life process. अब कहेंगे व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस विच इज नेसेसरी टू एग्जिस्ट लाइफ इन द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग। किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर लाइफ को, अगर उसका लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है तो जो भी प्रोसेस होते हैं लाइक रिस्पिरेशन, डाइजेशन, खाना पचता है पेटों में, एक्सक्रीशन जो खाना खाते बाहर जाता है, जो वेस्ट मैटर होते हैं, ग्रोथ, मेनी मोर प्रोसेस हैं जो एक लिविंग के लिए ज़रूरी होते हैं। सो तो लाइफ लिविंग थिंग्स विच कैन ग्रो, मूव, ब्रीथ, रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। All plant, all animals, all the microbes, they are living beings. Why they are living beings? Because उनकी growth है, उनके they have growth, they have reproduction, they have metabolic process, they have respiration, many more things. So now आता है कि what are the characteristic of living things? कैसे पहचानेंगे? हमने आपको रख दिया स्टोन और रख दिया एक एनिमल, दोनों में कैसे कहेंगे कि लिविंग है नॉन लिविंग है? सो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस life process, various characteristics, we can define that this is that living and that is non-living. All living things have an ability to grow. सभी लिविंग बीइंग में ग्रोथ होता है, वो इंटरनल ग्रोथ होता है, नॉट एक्सटर्नल। अभी आप फिटकरी को जो है पानी में घोल दीजिए और एक टुकड़ा डाल दीजिए, देन उसका जो है पूरा बॉल बन जाता है। ड्यू टू एक्सटर्नल डिपोजिशन, डस्ट से कोई चीज़ बढ़ जाती है, एक्सटर्नल डिपोजिशन से स्टोन बढ़ जाते हैं। स्टोन जैसे होते हैं, छोटे पेबल्स होते हैं, वो रोल करते करते नदियों में, पहाड़ों से उनके जो है स्टोन के पार्टिकल जमा जो होते हैं वो उनकी साइज बिग हो जाती है। सो इन नॉन लिविंग द ग्रोथ अकर ड्यू टू द एक्सटर्नल डिपोजिशन, वाइल इन द लिविंग बीइंग ग्रोथ इज द बेसिक प्रॉपर्टी विच इंटरनल। हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू डिवाइड एंड रीडिवाइड, एक बच्चा पैदा होता है स्मॉल साइज, फाइनली जायंट, लंबा चौड़ा, वो ह्यूमन बीइंग बन जाता है। सो वाई? ड्यू टू द ग्रोथ। सो ग्रोथ इज द वन ऑफ द बेसिक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग एंड इन द लिविंग इट इज़ इंटरनल। अंदर हमारे बॉडी में टिश्यू के डिवीज़न, टिश्यू के टूटने से होता है, नए नए टिश्यू बनने से, नए नए सेल बनने से ये ग्रोथ होता है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव एन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। आपने देखा होगा सभी लिविंग बीइंग में पैदा होते हैं, ग्रोथ होती है, दे अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी, वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करते हैं। जैसे कि प्लांट ही देखिए, मैंगो प्लांट को आप शो करते हैं, उसकी सीडलिंग आती है, प्लांट बढ़ करके एक समय आता है आफ्टर 4-5 ईयर्स उसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती हैं। ह्यूमन बीइंग में बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है और फाइनली आफ्टर 18-21 ईयर्स के बाद उसके अंदर प्रोसेस ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। ऑल लिविंग थिंग परफॉर्म मेटाबॉलिक प्रोसेस। हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, हमारी बॉडी के अंदर रिस्पिरेशन होता है, हमारे खाना खाते हैं, फूड ब्रेक डाउन करता है बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, बाय रिस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिक में कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। तो इस तरीके से प्लांट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस। हमारे बॉडी में फूड ब्रेक डाउन करता है बाय रिस्पिरेशन, कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो इस तरीके से मेटाबॉलिक प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर बॉडी एक्टिविटी, प्रॉपर बॉडी ग्रोथ। दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग्स। नेक्स्ट इज द लिविंग बीइंग हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द एनवायरनमेंट। आप सराउंडिंग गर्म है, ठंडा है, किसी छू लिया, कि पिन चुभ गई आपको, आप फट से पैर हटा लेते हैं। तो व्हाट दिस शोज? दिस शोज दैट यू हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। ऐसे प्लांट भी होते हैं, प्लांट देखिए सनफ्लावर सन की ओर घूमता रहता है, पत्तियां शाम को बंद हो जाती हैं। सो मेनी मोर प्रॉपर्टी प्लांट्स आल्सो शो, प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्स। यू नो दैट टच मी प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा देखा होगा आपने, छूते ही वो मुरझा जाता है। व्हाट दिस? दैट आल्सो शो द रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स इज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी टू ऑल लिविंग बीइंग्स। लिविंग थिंग्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। सारे लिविंग बीइंग में, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट हों, ह्यूमन बीइंग हो या इंसेक्ट्स हों, मैंगो ट्री हो या बैनन ट्री हो, सभी के बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन वेल डेवलप होता है। सभी की बॉडी सेल के बाद टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन मिलते हैं तो सिस्टम से तो पूरी बॉडी बनती है।
यानी हमारी बॉडी वेल ऑर्गेनाइज होती है। स्टोन देख लीजिए आप, स्टोन का बॉडी थोड़े होती है। आपकी बेंचेस जहाँ बैठते हैं आप, वो दैट इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, बट ऑल लिविंग बीइंग की बॉडी वेल ऑर्गेनाइज, वेल सिस्टमेटिक होती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू रिस्पायर। सभी लिविंग बीइंग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, फूड को बर्न करते हैं, उसे एनर्जी लेते हैं, उसे बॉडी एक्टिविटीज़ करते हैं। सो ऑल दिस आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू मूव। लिविंग बीइंग मूव करते हैं, प्लांट भी मूव करते हैं, बट उनकी मूवमेंट कम दिखाई पड़ते हैं। एनिमल्स दे मूव टू मच, उनकी मूवमेंट दिखाई पड़ते हैं। तो एवरी लिविंग बीइंग मूव इन नीड ऑफ फूड, इन नीड ऑफ शेल्टर, इन नीड ऑफ प्रोडक्शन। अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए सभी एनिमल्स मूव करते हैं यहाँ से वहाँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। लिविंग थिंग हैव एन एबिलिटी टू अडॉप्ट। हम अडॉप्ट कर लेते हैं किसी कंडीशन में जा कर के। हम यहाँ से ठंडी में गए तो वहाँ अडॉप्शन करते हैं। कोई एनिमल तमाम देखिए ना, एनिमल्स भी दे हैव कैपेबिलिटी टू अडॉप्ट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग टू अडॉप्ट इटसेल्फ। लिविंग थिंग हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। हमने देखा होगा, हमने कह दिया ह्यूमन बीइंग, तो आपके दिमाग में आ गया कि उन्हें हेड होगा, दो आँखें होंगी, ईयर होगा, माउथ होगा, नोज होगा, टंग होगा, नेक होगा, चेस्ट होगा, बॉडी होगी, लेग्स होंगे, हैंड होंगे। सो दिस इज़ क्लियर दैट एवरी लिविंग बीइंग हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज। ये नहीं कि ह्यूमन बीइंग होता गया लंबा, 100 फीट लंबा हो गया, 20 फीट लंबा हो गया, नॉट। मैंगो ट्री आपका है तो मैंगो ट्री का एक डिफरेंट शेप है, उस शेप के बाद उसकी ग्रोथ स्टॉप कर जाती है। सो लिविंग थिंग्स शो एज एजिंग एंड डेथ। लिविंग थिंग में एज होता है, जैसे कि जुवेनाइल फेज, मैच्योर फेज एंड फाइनली सेंसेंट फेज, यानी कि डेथ आ जाता है। तो लिविंग का फीचर होता है कि उनकी एजिंग होती है, उनका एज बढ़ता है, और फाइनली दे गो टू डेथ। एंड वन मोर कैरेक्टरिस्टिक, लिविंग थिंग शोज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स डेवलपमेंट, स्लो डेवलपमेंट। स्लोली स्लोली लिविंग बीइंग डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। सो दिस इज़ आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। और ये शॉर्ट में आप इसको पढ़ सकते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। लिविंग बीइंग हैव डिफरेंट शेप, लिविंग बीइंग परफॉर्मेटिव प्रोसेस, लिविंग बीइंग रिस्पायर, लिविंग बीइंग हैव एजिंग एंड डेथ, living being respond to the environment, living made of the cells, living being grow and develop, living being reproduce. All things in short you can learn. So this is about the property of living things, and our next lecture I have to teach you about the biodiversity and classification. कुछ चैप्टर्स आपके रिड्यूस हो गए हैं इसमें से, वो हम कट कर दे रहे हैं, एंड फाइनली आपको हम पढ़ाएंगे बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट लेक्चर में आपको। एंड प्लीज नोट इट एवरीबडी, जो नोट्स मिल रहे हैं आपको उसको प्रॉपर नोट करें, उसको प्रॉपर लर्न करें, उसको अच्छे से टेस्ट दें। आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं। ये मत सोचें कि स्कूल ओपन होगा तब स्कूल जाएंगे, डंडा खाएंगे तब पढ़ाई करेंगे। नो, लाइक गुड स्टूडेंट आप घर पर रह करके इन सब ऑनलाइन क्लास जो टीचर मेहनत कर रहे हैं, अभी रात के 2 बज रहे हैं, आपका नोट्स बन रहा है, आपका वीडियो बन रहा है। वाई फॉर यू, आपके लिए ऐसा वर्क हो रहा है कि हम लोग पास समय ना होते हुए भी समय निकाल कर सभी टीचर्स आपको नोट्स दे रहे हैं, आपको अच्छे से वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, यूट्यूब छाड़ कर दे रहे हैं। तो नाउ इट्स योर ड्यूटी, आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छा वर्क करेंगे। टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ एंड फाइट अगेंस्ट द कोविड-19। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, और जल्दी से मिलते हैं। बाय।